Hello friends, today we'll be talking about neonatal jaundice. Now as you all know that jaundice is a condition of increased bilirubin levels. So going back to our physiology classes, we can revise that the RBC has got hemoglobin and that hemoglobin has got two components, one is heme and the other is globin. Globin contributes to the protein storage of the body and then heme is converted into biliverdin and then biliverdin is broken down to bilirubin. Now this bilirubin is unconjugated and to transport in the blood it needs to combine with the albumin. So it gets combined with the albumin and reaches the liver. In liver, with the help of the enzyme UDP glucuronosyl transferase, which is written as UDPGT, it gets conjugated. So now unconjugated bilirubin gets converted into conjugated bilirubin. Now this conjugated bilirubin enters the intestine, where with the help of the gut bacteria, 90% of this conjugated bilirubin is converted into stercobilinogen, and which is excreted in the form of stools, and 10% of it is converted into urobilinogen and is excreted in urine. So in a neonate, there can be either physiological jaundice or the pathological jaundice. So first of all, we'll talk about the physiological jaundice. Now this is the jaundice which is characterized by always an increase in the unconjugated bilirubin. So in jaundice, either there can be an increase in conjugated or unconjugated or both kinds of bilirubin. But in physiological jaundice, specifically, we have only increase in the unconjugated bilirubin. What are the causes? Either there can be two causes. One is more amount of hemoglobin in the body, and the other is immaturity of the liver to conjugate the bilirubin. So in newborns, there is, since we all know that in newborns there is increased amount of hemoglobin present. So more hemoglobin, there is more lysis and leads to jaundice. And secondly, they also have their immature liver, which does not have enough of UDP glucuronosyl transferase enzyme. That leads to the inability to conjugate the unconjugated bilirubin into conjugated bilirubin and therefore increases the levels of unconjugated bilirubin in the body. अब इसमें फीचर्स क्या क्या मिलते हैं? सबसे पहला होगा कि इसमें सेफेलोकॉर्डल प्रोग्रेशन होता है, कि मतलब कि चेहरे से स्टार्ट होगा और आखिरी में पाम्स एंड सोल्स को सबसे आखिरी में इन्वॉल्व करेगा. सो फ्रॉम द हेड टू टो, दिस इज द इन प्रोग्रेशन. इसमें द लास्ट एरिया टू गेट इन्वॉल्व इज द पाम्स एंड सोल्स, वेयर एज it is the area which is never getting to be involved because physiological jaundice is not that severe. ठीक है. It and then another point is that it never appears on day one. ना तो पहले दिन पे आता ही और ना ही 7वें दिन से ज़्यादा एक्सीड करता है इन टर्म बेबी, और 14 दिन से ज़्यादा किस में एक्सीड नहीं करता? इन प्री टर्म बेबी. It never affects the palms and soles, therefore it never exceeds bilirubin greater than 15 mg per dl. अगर आपको जॉन्डिस पाम्स एंड सोल्स में मिलती है तो यानी बिलिरुबिन की लेवल एक रफ अप्रॉक्सीमेशन के हिसाब से 15 mg पर dl होती है, पर क्योंकि यहाँ पाम्स एंड सोल में कभी पहुँचती नहीं है तो इसमें बिलिरुबिन लेवल आप कह सकते हो कभी 15 mg पर dl से ज़्यादा होती ही नहीं है. और जो इसमें राइस ऑफ बिलिरुबिन मिलता भी है आपको, वो लेस देन इक्वल टू 5 mg पर डे के हिसाब से ही मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं होता. अब कैसे आप एस्टिमेट करोगे? तो एस्टिमेट करने के लिए आपको सीरम बिलिरुबिन देखना पड़ेगा. उसको देखने के लिए आप ये भी यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ ट्रांसक्यूटेनियस बिलिरुबिनोमीटर. नाउ एज यू कैन सी हियर इज़ एन इंडेक्स विच इज़ नोन एज क्रैमर्स जोन. अब क्रैमर्स जोन क्या करता है कि एक रफ एस्टिमेशन निकालने के लिए कि आपकी बॉडी में किस पार्ट में मतलब कि आपकी बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ बिलिरुबिन है, तो उसको निकालने के लिए कि इन्होंने एक इंडेक्स बनाया है जिसके हिसाब से इन्होंने फेस को नंबर 1 दे दिया, मतलब हेड वाले पोर्शन को 1 नंबर दे दिया, फिर चेस्ट को 2, एब्डोमेन और पेरिनियम को 3, और अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब को 4, और पाम्स एंड सोल्स को 5th नंबर दे दिया. तो अगर आपका हेड सिर्फ ओनली हेड इज इन्वॉल्व, देन द लेवल ऑफ बिलिरुबिन इज अप्रॉक्सीमेटली 4 to 6 mg पर dl. चेस्ट है तो 6 to 8, एब्डोमेन 8 to 12, अपर लिम्ब लोअर लिम्ब है तो 12 to 14, और आपका पाम्स एंड सोल्स इन्वॉल्व होते हैं तो 15 mg पर dl हो जाता है. सो दिस इज based on the part of the body involved in jaundice, it is possible to tell the approximate bilirubin levels. इसे हम क्रैमर जोन कहते हैं. It is a very handy tool. Now we come on to another topic, that is pathological jaundice. अब पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में तो
जो बिलिरुबिन का लेवल होगा यानी 15 mg/dl से ज़्यादा ही होगा, तभी हम उसको पैथोलॉजिकल कह रहे हैं, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल इट इज लेस देन 15 mg वी आर कंसिडरिंग इट टू बी नॉर्मल, we are considering to be physiological jaundice. But when it exceeds beyond 15 mg/dl, then it is known as pathological jaundice. अब यहाँ पर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी बढ़ सकता है, कॉन्जुगेटेड भी बढ़ सकता है. तो what are the causes of increase in unconjugated bilirubin? Again, here can be also two causes. Either there is increased production or decreased conjugation. तो increased production हो सकता है आपका पॉलीसाइथीमिया वेरा में. सेकेंड इट्स हिमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न. अब हिमोलिसिस चाइल्ड में दो तरह से हो सकती है, या तो RH इनकम्पैटिबिलिटी हो या ABO इनकम्पैटिबिलिटी हो, या फिर उसको हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस हो. तो अब इनमें से सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सी इनकम्पैटिबिलिटी है? दैट इज़ ABO इनकम्पैटिबिलिटी. और RH इनकम्पैटिबिलिटी जो है दैट इज़ द मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी. सेकेंड आते हैं डिक्रीज कॉन्जुगेशन. अब डिक्रीज कॉन्जुगेशन तभी होगा जब या तो आपका ग्लूकोनोसिल एंजाइम डेफिशिएंट है, या तो एब्सेंट है टोटली, या तो फंक्शनिंग नहीं कर रही है. तो ये सब कहाँ आपको देखने को मिलेगा? आपको क्रिगलर नाचार सिंड्रोम में दिख सकता है ये चीज़, या फिर गिलबर्ट सिंड्रोम में दिखता है. तो क्रिगलर नाचार सिंड्रोम में क्या होता है कि जो टाइप 1 है उसमें देर इज़ नो उसमें एब्सेंट ही है यूटीपी ग्लूकोनोसिल ट्रांसफरेज, बट टाइप 2 में देर इज़ ओनली डेफिशिएंसी. और गिलबर्ट सिंड्रोम क्या है? वो लेट ऑनसेट है. फिर आता है आपका causes of increased conjugated bilirubin. ये हो सकता है obstructive jaundice में, and most common cause is biliary atresia. Now we'll be talking about the treatment of jaundice. कैसे हम treat करते हैं? Either it can be pathological or physiological. How we will be treating both kinds of jaundice? The most preferred method that we use is phototherapy. We believe that in presence of wavelength of 460 to 490 nanometers, the unconjugated bilirubin, which is water insoluble, is converted into lumirubin, which is water soluble, and it gets excreted out of the body. Now this can be done by the help of three mechanisms of phototherapy. First is photoisomerization, second is structural isomerization, and third is photooxidation. अब इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पाथवे है दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन, जहाँ पर बिलिरुबिन इज कन्वर्टेड इनटू ल्यूमिरुबिन. अब इसमें हम कौन कौन सी लाइट्स यूज़ करते हैं? या तो CFL लाइट यूज़ करते हैं, या तो LED यूज़ करते हैं, एंड LED इज़ कंसिडर्ड बेटर देन CFL. अब इसमें एक चीज़ होती है कि कितनी देर तक अमाउंट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन अ चाइल्ड, वो कितनी लाइट गिरनी चाहिए बच्चे पे ताकि उसमें ये ट्रीटमेंट हो सके. तो दैट इज़ एटलीस्ट 30 माइक्रोवाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर नैनोमीटर. अब बच्चे और मतलब लैम्प में कितना डिस्टेंस होना चाहिए? 30 to 45 सेंटीमीटर्स का होना चाहिए. और आइडली द बेबी शुड लाई नेकेड, ओनली कवरिंग आइज एंड जेनिटेलिया. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ नैपकिन्स और एनीथिंग, बट यू हैव टू कवर ओनली दिस पार्ट, नॉट द होल बॉडी. व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट्स? अब इसमें क्या होता है कि डिहाइड्रेशन हो सकता है इस वजह से, तो जिसको काउंटर करने के लिए हम फीडिंग करते हैं फ्रीक्वेंटली. हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, और एक और चीज़ होती है जिसको कहते हैं ब्रॉन्स बेबी सिंड्रोम. अब ब्रॉन्स बेबी सिंड्रोम कोई ड्रग की वजह से नहीं हो रहा, वो फोटोथेरेपी की वजह से हो रहा है. होता क्या है कि जब कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन या इंक्रीज इन कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन या हेपेटिक डिसफंक्शन जब होता है, अगर फोटोथेरेपी दे दो तो उसमें क्या होगा कि जो बिलिरुबिन है उसमें वो ब्राउन कलर के पिगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि ब्रॉन्ज कलर के दिखते हैं. तो दिस लीडिंग टू ब्रॉन्स बेबी सिंड्रोम. Now another method of treatment is double volume exchange transfusion. जब कोई बच्चा फोटोथेरेपी से रिस्पॉन्ड नहीं करता तब हम उसमें एक्सचेंज ट्रांसफ्यूशन करते हैं, यानी कि हम बेबी का पूरा ब्लड निकाल के उसमें फ्रेश अमाउंट ऑफ ब्लड डालते हैं. तो अगर और इसमें हम यूजुअली क्या करते हैं, डबल द वॉल्यूम ऑफ ब्लड हम इंट्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, तो अराउंड 80 ml होता है, 80 ml per kg ऑफ ब्लड इज प्रेजेंट इन द बॉडी. वी प्रोवाइड 160 ml per kg. टाइप ऑफ ब्लड हम जो लेते हैं वो O नेगेटिव होना चाहिए. O नेगेटिव इसलिए क्योंकि O नेगेटिव में कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं प्रेजेंट होती हैं, नाइदर RH एंटीबॉडी नॉट दी ABO एंटीबॉडी. तो किसी भी तरह की इनकम्पैटिबिलिटी नहीं होती है. इंडिकेशंस क्या क्या हैं? जब आपका कॉर्ड ब्लड लेवल, इफ़ द कॉर्ड ब्लड लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इज़ लेस दैन 10 ग्राम या फिर बिलिरुबिन इज़ ग्रेटर देन 5 mg, तब आप करते हैं. सेकेंड इज़ व्हेन द डायरेक्ट कूम्स टेस्ट इज़ पॉजिटिव, or when there is failure of phototherapy to decrease bilirubin, or in severe hemolysis. फिर कुछ ड्रग्स भी इसमें हेल्पफुल होती हैं, जैसे कि फिनोबार्बिटोन जो कि एक एंजाइम इंड्यूसर है,
ऑफ यूटीपी ग्लूकोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम की। फिर मेटालोपोरफायरिन्स भी हो सकते हैं जो हीम ऑक्सीजनेस इनहिबिटर होते हैं, तो इसको कन्वर्शन ऑफ हीम को ही रोक देते हैं, तो बिलीवर्डिन बनता ही नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम अराइज ही नहीं करती। अब मेटालोपोरफायरिन में इसमें आप ऐसे देख सकते हो कि कोई भी मेटल का नाम आगे लगा दिया जाएगा पोरफायरिन के आगे, जैसे कि टिन लगा दिया गया तो एसएन पोरफायरिन लिखा होगा, ऐसे कुछ भी लिखा हो सकता है, ठीक है। सो दीज आर द ट्रीटमेंट मोडालिटीज ऑफ न्यूनेटल jaundice. So before I end, I want also like to tell you one point, that is what is the complication of pathological jaundice. Most common complication is kernicterus. So that is more than enough what you need to know about pathological jaundice and jaundice in as a whole in a neonate. Thank you.